Hello student, I am Sachin Gupta and I welcome to you on my YouTube channel where I am uploading the video of the mathematical concept. Today I brought to you a most important concept of the differentiation. In this lecture student, I solve the question number from 45 to 66 of exercise 10F of the chapter differentiation of the class 12th student. And it's before I move towards our lecture, I want to say that I already make a part 1 and part 2 of this exercise 10F, in which part 1 I solve question number from 1 to 20 and question number from 21 to 44 I solve in the question in part 2 student. Those want to see, go on my playlist, or you can go on description box where I give the link of both previous lecture, and you can watch there. Student, I start here I write some question from 45 to 52 of exercise 10F. It's before I start to solve a question. I want to say that please like and subscribe my channel, because if you do so, then you give me as a feedback and I make more video for you. And let's start student to solving question one by one. Here student, question number 45 is given to us, y equal to under root x plus y. If I square both sides, if I square on both sides, then it become y square equal to x square plus y, not x square, only x. Now I differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. Then d by dx of y square, d by dx of x plus y. I write d by dx both sides. Differential of y square is become 2y dy by dx. Why? Because we are differentiating y with respect to x. Then square of y, its differential is 2y. Since y is a function of x, so we again differentiate it. So that's why I write here dy by dx. Now d by dx of x is 1 and d by dx of y is dy by dx. It does not change. Here y is some function in x, so I write it again dy by dx. Now we take dy by dx in one side, or you can say on left hand side. Then dy by dx I take common, and value of dy by dx is become 1 upon 2y minus 1. This is to give us which here to prove. So value of dy by dx is 1 upon 2y minus 1. Hence proved student. This is given to us to prove. Now student, I go to the question number 46. Question number 46. Question number 46. X raised to the power a, x की power a, y की power b, x की power a, y की power b equal to x plus y की whole power a plus b is given to us, and I want to find dy by dx. So I differentiate it, d by dx of x raised to the power a, y raised to the power b, and it cannot be differentiated directly student. So I take log on both sides student. I take log on both sides. Take log on both sides. So when I take log on both sides, then it I write log on both sides.
Now we apply formula. Now we apply here the formula of log m into n, that is log m plus log n. Here also power come before of the log a plus b log of x plus y. Now student, this a and this b also come before of the log. So I write a log x and b log y, and I write right hand side as well as now I differentiate both side. With respect to x. We get d by dx of a log x plus b log y equal to a plus b is constant, d by dx of log x plus y. Now I distributed d by dx inside the bracket terms, then a take outside and differentiate log x, because a is a coefficient and b is a coefficient, which I write outside, and a plus b I write as well as a student here, and differential of log x plus y is 1 upon x plus y, and d by dx of x plus y is come again, because here we apply chain rule. Or you can say we are differentiating with respect to x, since in the place of x it does not here does not present x only, here present x plus y, so I again differentiate x plus y. Now differential of log x is 1 upon x, differential of log y is 1 upon y. Since we are differentiating with respect to x and y is a function of x, so dy by dx come again. Now a plus b I write as well as, and this 1 plus xy I write in the denominator of a plus b, and if this d by dx I distribute inside of the bracket terms, then it's become d by dx of x plus d by dx of y. Now I write here it's become a by x plus b by y, dy by dx is equal to a plus b upon x plus y, a plus b upon x plus y. In multiplication, differential of x is 1 and dy by dx come as well as, and I write 1 plus dy by dx. Now here dy by dx come and here also dy by dx come, so I take both these two dy by dx in one side, and remaining terms I take on the right hand side. Since by come as well as, and when you multiply this bracket by this dy by dx and take on the left hand side, then it's come on the negative, left hand side as a negative sign, with a negative sign. So I write a plus b upon x plus y with a negative sign, and take dy by dx common here. This line is different to this line. This is the next line. Now this terms a plus b upon x plus y I write as well as this. When you multiply this by 1, then a plus b upon x plus y come as well as, and a by x goes to the right hand side, then it's become in minus sign a by x. Now you can calculate here. If you calculate it, then here LCM come y. I write here
LCM come as y x plus y, and this x plus y multiply by b, then it's become bx plus by, and this y multiply by a plus b, and minus sign is also occurring, so I also multiply this minus, then it's become minus ay minus by, and dy by dx come as well as this is the indication only for indication implies that sign. I also apply here, student. You don't confuse. This line is different. This is first line, second, and third line. Now I write equal here. When you take LCM here, student, then x and x plus y come as a LCM, and this x multiply here, then it's become ax plus bx, and this minus a multiply x plus y, then it's become minus ax minus ay. Now you can calculate it in the in both side denominator. X plus y is occurring, so I cancel this x plus y both side. And student, one more thing, that by and by come up on the opposite side here, and this ax and this minus ax is also cancel to each other because both have opposite sign, and it's become bx plus ay divided by y, and dy by dx is equal to bx minus ay whole divided by x. Now those terms are on the left hand side in multiplication dy by dx. I write on the right hand side, and since here is no space, so I write here dy by dx, its values become, this y goes on the numerator part, then it's become y by x, and this bx plus ay goes on the denominator of the bx minus ay, bx plus ay. This is our answer, student. This is our answer. You can match. Here, student, we have to prove dy by dx is equal to y by x. So since we want to prove y by x, so this value does not come here, so this value does not come here. It means, student, these two value have to same sign. Bx minus ay, I will check here. Here, student, you can watch here bx minus ay is come, and I write here bx plus ay. You can see here bx minus ay, so I make it as a minus sign, student. I write here plus sign, and now this bx minus ay also get cancelled, so I write here bx minus ay in the denominator, and these two terms are same, so these two terms also cancel to each other. Then the value of dy by dx is become y by x only, which is given to prove to us. Now, student, I solve question number 47, which is x raised to the power x plus y raised to the power x plus equal to 1. As guys, question number 47 is a very easy question, and I already mentioned this type of question is solving by taking a and b, student. Whenever two exponent are occurring in addition, whenever two exponent meaning is, student, exponent meaning is a raised to the power b. Whenever
some number is come in as a raised to the power b, a raised to the power b, then it is called exponential form, student. This is called exponential form. So I apply here what I will tell you. I tell you, student, whenever two exponents are occurring on addition, this addition sign you can see in your screen. Then we apply here by let a equal to x raised to the power x and b equal to y raised to the power x. Then our this line is become, student, this line is become a plus b is equal to 1. A plus b is equal to 1. Now if I differentiate it, if I differentiate with respect to x, differentiate with respect to x both side, then it take as a d form of dA by dx plus dB by dx is equal to d by dx of 1. And you know differential of d by dx is of 1 is 0. Differential of constant function is 0. So I write here 0. I take this as a equation number 1. Now since I consider a equal to x raised to the power x, and when I take log both side, then it become log x raised to the power x. And I know whenever some power occurring on occurring with log, then power come before of the log. So I write here x in multiplication. And now I differentiate both sides with respect to x. So I write d by dx on both sides. So it's become guys dA by dx is equal to x raised to the power x and 1 plus log x. This is your dA by dx. I already mentioned in before lecture differential of x raised to the power x is x raised to the power x 1 plus log x. और यू चलिए ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, पूरी बात लिख दे रहा हूँ. तो 1 upon a, differential of log a is 1 upon a, and dA by dx come as well as, since we are differentiating with respect to x, so dA by dx come as well as. And student, when you here apply first second rule, then x come as well as. Differential of log x is 1 upon x, and log x you write as well as, and differential of x is 1, student. Now this x and this x get cancelled, and value of a is x raised to the power x. Then dA by dx is become x raised to the power x, and this become 1 plus log x. इस तरह से ये आपका x raised to the power x 1 plus log x आ जाएगा. अब हम जो हमने b कंसीडर किया था वो हम लेते हैं. सिंस b इक्वल टू y रेज टू द पावर x है, y की पावर x है, सो हम यहाँ पर फिर से log ले लेंगे. log b इक्वल टू x टाइम्स log y हो जाएगा. किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो कमेंट कर सकता है इस चीज में. इतने आप ना समझ नहीं हो, जब हम log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी बच्चों, ठीक है. अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, d बाई dx लिखेंगे, दोनों तरफ d बाई dx लिखेंगे. और जब d बाई dx लिख दिया है तो डिफरेंशिएट भी करेंगे. d बाई dx क्यों लिखा है आप बताइए, d बाई dx क्यों लिखा गया है, डिफरेंशिएट करने के लिए. तो डिफरेंशिएट कीजिए. log b का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन b, और db बाई dx ऐसे जैसे का तैसा आ जाएगा, क्योंकि b एक फंक्शन है x का, इसलिए b वैसे ही आ गया. अब देखिए आप इधर आप फर्स्ट सेकंड लगाइए, x को वैसे लिख दीजिए और log y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन y. क्योंकि y x का फंक्शन है यहाँ पर, तो y को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, इसलिए dy बाई dx और आ जाएगा.
अब dy/dx जब आ गया, आपने अभी आपने किसका डिफरेंशियल किया था, log y का। अब log y को वैसे ही रख दीजिए और x का डिफरेंशियल कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। ये b जाएगा उधर मल्टीप्लीकेशन में dv/dx, और b की वैल्यू y रेज टू द पावर x मान रखी है तो वैसे ही रख देंगे, और ये बन जाएगा x/y dy/dx और ये log y हमने वैसे ही पुट कर दिया, वैसे ही रख दिया। अब बारी आएगी इस इक्वेशन 1 की। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखिए dA/dx प्लस dB/dx इक्वल टू 0 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इन दोनों में इक्वेशन की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, और इसकी वैल्यू क्या है dB/dx की, ये है y की पावर x अपॉन x डिवाइड बाई y dy/dx प्लस log y। क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं dy/dx, तो हम क्या करेंगे, हम dy/dx को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे टर्म से। सो x रेज़ टू द पावर x हमने ये तो वैसे ही लिख दिया, ये वैसे ही लिख दिया। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy/dx, और ये क्या आएगा, ये आएगा आपका y की पावर x इंटू एक्स और log y होल डिवाइड बाई y इक्वल टू 0। अब ये dy/dx उधर जाएगा तो ये माइनस टर्म में आएगा, जब उधर जाएगा तो माइनस टर्म में आएगा। मैं राइट हैंड साइड को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा तो ये पूरा टर्म कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy/dx हमने वैसे ही लिख दिया, और ये दोनों टर्म यहीं पर हैं तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और इधर वाला LHS टर्म मैं राइट हैंड में लिख दे रहा हूँ, x की पावर x 1 प्लस log x एंड y की पावर x इंटू एक्स अपॉन y और log y मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये सारे टर्म्स उधर जाएंगे तो ये सब कैसे आएंगे हमारे, ये सब अपोजिट रिलेशन में आएंगे। जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y इंटू ये x/y, जब हम इधर ले जाएंगे तो ये y/x बन जाएगा, और y की पावर x ये भी डिवाइड में चली जाएगी, और माइनस साइन तो दोनों में आ ही जाएगा। तो x की पावर x एंड 1 प्लस log x एंड प्लस, ये देखिए ये बच्चों, ये पूरा जब उधर जाएगा तो अपोजिट रिलेशन में आएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, ये बचेगा केवल माइनस का log y। क्या बचेगा, माइनस का log y। या तो आप कह सकते हो कि यही आपका आंसर है, और चाहो तो इसको और सॉल्व करके जैसा इसमें डिमांड की गई है वैसा बना सकते हो। क्या डिमांड की गई है 47 में डिमांड की गई है, इसमें एलसीएम ले लिया गया है, इसमें एलसीएम ले लिया गया और उसको सॉल्व किया गया। यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, यहाँ पे y की पावर x है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा x की पावर x माइनस 1 और y की पावर भी x माइनस 1, ये आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें 47 में, क्या प्रूव करना है हमको, x की पावर x 1 प्लस log x। बच्चों उसने जो है x को नहीं सॉल्व किया, तो हम भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, जैसा उसको चाहिए वैसा बना दे रहे हैं। ये x की पावर x रहने देते हैं, तो x इसके मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, और इस x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस log x वैसे रख देते हैं एंड x टाइम्स log y वैसे, और ये हमारा जो है इसका एलसीएम जो है आ जाएगा x इंटू वाई रेज़ टू द पावर x माइनस 1। यहाँ पर केवल इस y को सॉल्व किया गया है, तो ये पावर ये y, जब इससे y की पावर x से सॉल्व करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी y की, मतलब y की पावर x माइनस 1 बन जाएगा, और ये x हमने वैसे ही लिख दिया। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो
क्या आएगा, y की पावर x माइनस वन भी आएगा, y की पावर x माइनस वन भी आएगा। बच्चों यहाँ जगह बहुत कम है और समस्या हो रही जगह की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई में y की पावर x माइनस वन और आएगा, x की पावर x एंड वन प्लस log x माइनस x टाइम y की पावर x माइनस वन log y और होल डिवाइड बाई x इंटू वाई की पावर x माइनस वन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर विच इज गिवन टू प्रूव here not come x student, here come y, as you are watching that this x and this x, here come y student, not x. So let's I check. दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एक गलती कर दी है कि यहाँ पे जब y की पावर x का मल्टीप्लिकेशन किया है इस ब्रैकेट के अंदर, तब हमने यहाँ पर x नहीं था और इस x को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो इस x को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं मित्रों। तो y की पावर x और अपॉन में y भी नहीं है, तो ये y भी नहीं आएगा, ये y भी नहीं आएगा। हमने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया और ध्यान नहीं दिया। बच्चों आप लोग ऐसी गलती ना कीजिएगा, ठीक है। ये y की पावर x log y ही रहेगा केवल, और क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का उधर पे, तो ये y की पावर x तो कट जाएगा, ये y की पावर x इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x अपॉन y y बाई x बन के यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बाई x दोस्तों। बच्चों यहाँ पर y बाई x आ जाएगा ये, और y बाई जब x आएगा और आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा गलत लिख दिया है। अब आप जब देखिएंगे ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं जगह बना लेते हैं, ये जो है आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा आपका x की पावर x अपॉन x y की पावर x माइनस वन माइनस का और वन प्लस log x एंड माइनस y अपॉन x log y, ये बन जाएगा आपका। अब आप देखिए अगर अब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा, मैं dy बाई डी एक्स यहाँ लिखता हूँ और एलसीएम आएगा x y की पावर x माइनस वन, x y की पावर x माइनस वन, और जब इस x x तो कैंसिल हो जाएगा, y की पावर x माइनस वन का मल्टीप्लाई इस y से होगा, तब ये कुछ ऐसा बनेगा x की पावर x वन प्लस log x एंड प्लस एंड y की पावर x log y। दोस्तों ये बनेगा आपका, देख लीजिए आप चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती अभी भी हो तो बताइए। यहाँ पे बच्चों मैं एक ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों माइनस कॉमन लेंगे माइनस साइन, तो ये माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो आपका ऐसा बनेगा, यहाँ बिग ब्रैकेट भी आएगा। या बिग ब्रैकेट ना लगाना चाहते हो आप तो कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स में बंद कर रखा है तो बिग ब्रैकेट में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 48 के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
Question number 48 is given to us, student. Y equal to e raised to the power sin x and plus 48 plus tan x whole of power x. Here, student, again two component are occurring. टू एक्सपोनेंट, सॉरी स्टूडेंट, कंपोनेंट नहीं, दो एक्सपोनेंट फिर से सम में आ रहे हैं, तो हम इसको फिर से a और इसको b लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन x एंड b इक्वल टू tan x होल पावर x। तो ये लाइन अपनी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, यहाँ पे e की पावर साइन x की जगह पर हम a पुट कर देंगे और tan x की पावर x की जगह पर b पुट कर देंगे। अब हम जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने जो a माना था उसको हम लोग लेते हैं a इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन x। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशियल तो चेंज होता नहीं है, तो e की पावर x वैसे ही आ जाएगा। चूंकि साइन x x की जगह पर आ रहा है तो हम साइन x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। हम वी अगेन डिफरेंशिएट दिस साइन x, तो वैल्यू ऑफ dA बाई dx क्या बन जाएगी, e की पावर साइन x और साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। ये हो गया वैल्यू ऑफ dA बाई dx। अब हमने b की वैल्यू क्या ले रखी है, b की वैल्यू ले रखी है tan x की होल पावर x। जैसे ही हम यहाँ पे log ले लेते हैं तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, log के आगे आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या बनेगा देखते हैं, ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log b इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टाइम्स log tan x। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे और इसका डिफरेंशियल log b का करेंगे तो 1 अपॉन b db बाई dx आ जाएगा। और इधर फर्स्ट सेकंड लगाओगे आप तो क्या बनेगा, x d बाई dx ऑफ log tan x एंड प्लस log tan x एक बार वैसे ही लिख देंगे और क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। अब ये b आप कहां ले जाओगे, राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो क्या बनेगा db बाई डी एक्स, b मल्टीप्लाई में आएगा और चूंकि b की वैल्यू हमने ले रखी है tan x की पावर x। चलिए अभी हम ऐसे लिख देते हैं और जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है इनका डिफरेंशियल करते हैं। log tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन tan x और 1 का जब आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन tan x बन जाएगा और tan x का हम दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। देखिए इस log tan x का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो 1 अपॉन tan x आएगा, ये 1 अपॉन tan x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x अपॉन tan x बन जाएगा। चूंकि tan x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x के प्लेस पर है, तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा। अब देखिए जरा log tan x हमने वैसे ही पुट कर दिया और इसका x का डिफरेंशियल होता है 1, उसको लिखने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूं इंटू 1। अब b की वैल्यू क्या थी, जो b की वैल्यू थी वो हमारी है, b की वैल्यू tan x की पावर x और ये x। आप जब sec स्क्वायर x अपॉन tan x को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 2 टाइम्स cosec 2x। क्या बनेगा, 2 टाइम्स cosec 2x और ये log tan x वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमारी बारी है, अब हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से
डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स है। तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू है e रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, और db बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? tan x की पावर x, tan x की पावर x एंड इन मल्टीप्लीकेशन 2x cosec 2x प्लस log tan x। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 2x cosec 2x प्लस log tan x। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। एक बार चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, e रेज टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस tan x की पावर x 2x cosec 2x एंड log tan x। बिल्कुल यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 49 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज गिवन टू अस। क्या है कि बच्चों गीला कपड़ा मार दो तो फिर जल्दी मारकर चलता नहीं है, इसलिए दोबारा सूखा कपड़ा मारना पड़ता है। 49 क्वेश्चन नंबर दिया गया है y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें लॉग दिया गया है पहले से ही, तो हम इसको क्या करें, हम इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने वैसे ही लिख दिया, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, तो हमने 1 अपॉन एक्स वैसे लिख दिया। मैंने x की जगह पर ये पूरा मान रखा है ब्रैकेट, इसलिए मैंने इसको पूरे को x बोला, 1 अपॉन एक्स। क्योंकि हम यहाँ पर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया दोबारा। क्यों दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हम डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस पूरी टर्म के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर इस पूरे टर्म्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो केवल आंसर ये होता। क्योंकि हम केवल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमको इसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन रूल अप्लाई हो रहा है और या फिर आप कह सकते हैं चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको वैसे लिख देते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड डिफरेंशियल ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स करते हो तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स बनता है। और चूंकि डी बाई डी एक्स आपको दोबारा करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये कुछ बनेगा डी वाई बाई डी एक्स हमने वैसे पुट कर दिया, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया। और इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 1 का डिफरेंशियल 0, तो 2x आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तब ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब आप देख रहे होंगे ये डिनोमिनेटर टर्म्स इस न्यूमरेटर टर्म्स से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू केवल बचेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है यही प्रूफ करना हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 में एक चीज है यहाँ पर बच्चों, बार बार थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों मिस्टेक आई है। लॉग भी आ रहा है इसमें,
क्वेश्चन तो गलत नहीं नोट किया है हमने। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन यही है। हमने इसका dy बाई dx किया दोनों तरफ। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, इसका डिफरेंशियल आप दोबारा करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमें दोनों दोबारा करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका 2x, और 2x से 2 कैंसिल होकर बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर एडिशन में आ जाएगा, और ये दोनों स्टूडेंट बिल्कुल एकदम सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इतना बस बचेगा। दोस्तों मैंने चेक कर लिया है, इसका आंसर यही आएगा। इसमें बुक में आपके जो दिया गया है dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1 अपॉन लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दे रहा है, ये जो आंसर दे रहा है, ये आंसर आपका तब निकलेगा जब यहाँ पर एक और लॉग आएगा बच्चों। तो इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर यही आएगा आप जब प्रूफ करोगे, इसको सॉल्व करोगे। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इधर पे आप एक और लॉग लगा लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है y इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट x प्लस 1। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ले रहे हैं दोनों तरफ, लॉग क्योंकि पहले से ही प्रेजेंट है इधर, और लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ सुविधाएं वो खुद भी कभी कभी दे देता है, हमें इस चीज की तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए उसने खुद दे रखा है इस बार। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, वो कुछ भी दे। डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, चूंकि एक्स की जगह पर क्या आ रहा है साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स होता है ना। तो अब हम साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, तो कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इस बार हमने इसको पूरे को एक्स मान लिया, अंडर रूट को, तो इस बार हमें अंडर रूट को करना पड़ेगा। जब आप अंडर रूट को करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 0, 2x प्लस 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हमने वैसे ही पुट कर दिया, ये बनेगा आपका, ये बना कॉस अपॉन साइन बना कॉट, कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, जो कि हमने सबसे आगे लिख दिया, और जो डिवाइड में था उसको वैसे ही लगा दिया। देखिए यही तो नहीं प्रूफ करना, चेक करें 50 नंबर 50 नंबर में x कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्टली यही प्रूफ करना है, तो जो कि प्रूफ हो चुका है। चलिए 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 दे रहा है y इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप जैसा कि जानते हैं अंडर रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में पावर में 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसको पावर में 1/2 के रूप में लिख देते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर में आता है वो सबसे आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब आप देखिए जरा, लॉग हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेते हैं, तो 1/2 तो कोएफिशिएंट है, इसको बाहर ही रहने देंगे, और लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स
ये हमने वैसे लिख दिया। और log का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x होता है। तो 1/x होता है, तो चूंकि ये तो p/q के रूप में, जब 1/p/q करोगे आप तो ये पलट जाएगी संख्या, q/p बन जाएगी। तो मैं इसको पलटा देता हूँ, सीधे उठाकर लिखता हूँ 1 + cos x, ये डिनोमिनेटर ऊपर लिख दिया और न्यूमरेटर नीचे लिख दिया। ये हो गया हमारा 1/x, log x का डिफरेंशियल 1/x, और d/dx ऑफ 1 - cos x और 1 + cos x हमने ऐसे ही लिख दिया। 1 - cos x और 1 + cos x, इसको दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह पर ये पूरा टर्म्स आ रहा है। x की जगह पर इतना बड़ा जो आ रहा है उसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए देखिए, हम यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। dy/dx वैसे लिख दिया, 1/2 वैसे लिख दिया, 1 + cos x अपॉन 1 - cos x वैसे ही लिख दिया। अब आप देखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड रूल जब अप्लाई करोगे डिनोमिनेटर का ऑफ द डिफरेंशियल का, तो क्या होता है, ये डिनोमिनेटर वाला सेकंड होता है, ऊपर वाला फर्स्ट होता है। तो सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट, तो 1 का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो 0, और cos x का करोगे तो -sin x, क्योंकि पहले से माइनस है तो ये +sin x बन जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये माइनस साइन जो है मैंने वैसे ही लगा दिया। अब देखिए जरा, 1 - cos x है, ये फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा। अब सेकंड का डिफरेंशियल किया जाएगा तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 1 का तो 0 आ जाएगा, और cos x का -sin ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। और ये डिवाइड में हमने 1 + cos x का होल स्क्वायर वैसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ सेकंड आता है, क्योंकि सेकंड क्या हमारा डिनोमिनेटर 1 + cos x, तो 1 + cos x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखिए, इसकी पावर इससे 1 + cos x से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अब देखिए क्या बच रहा है, देखिएगा, वैल्यू ऑफ dy/dx हमने वैसे ही लिख दिया, हाफ को हाफ वैसे लिखा। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो ये साइन एक्स हमने यहाँ लिख दिया, और 1 - cos x को वैसे ही लिख दिया। अब देखिए 1 + cos x और प्लस 1 - cos x, 1 + cos x प्लस 1 - cos x होल डिवाइड बाई 1 + cos x, ये वैसे ही आ जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, अब ये cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपका। ये sin x वैसे ही, और a - b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a² - b², और a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और cos का स्क्वायर करोगे तो cos² x आ जाएगा। और ये sin x हमने वैसे ही पुट कर दिया, और 1 - cos² होता है sin² x, तो साइन की एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी नीचे से। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1/sin x, और 1/sin x होता है cosec x, 1/sin x होता है cosec x। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने खुद ही पढ़े लिखे हो, समझदार हो। dy/dx की वैल्यू cosec x होती है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, यही प्रूफ करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रूफ करना है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। डिफरेंशियल तो इतना सरल चैप्टर है कि आधे से ज्यादा बच्चों को आता है, इसकी जरूरत किसी को नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने एक उद्देश्य अपने मन में ठान लिया है कि हम पूरी RS अग्रवाल का सॉल्यूशन नेट में अपलोड कर दें, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसलिए हम पूरी RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बच्चों देने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी मित्रों दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, y = log 10 of π/4 + x/2। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, लिखते हैं dy/dx ऑफ log 10 π/4 + x/2।
dy बाई डी एक्स हमने वैसे लिख दिया। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, क्योंकि ये जब अपॉन में जाएगा, मैं लिख देता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये देखिए ये ऐसे अपॉन में चला जाएगा। अब tan का क्या होता है डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता है। अब इसको हमें दोबारा करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म इसका 0 और x का 1 और 1/2 तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो क्या बना देखिए जरा, dy बाई डी एक्स, और जैसा कि मैंने बताया है बच्चों, ये बनता है हमारा क्या, ये बनता है 2 टाइम्स cosec 2x, 2 टाइम्स cosec 2x बनेगा। और इस ये 1/2 और अलग से आ रहा है हमारा, इन दोनों का कैलकुलेशन, ये दोनों जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 2 cosec 2x आ जाएगी, ठीक है। और 1/2 हमने वैसे लिख दिया, 2 से 2 काट दिया तो क्या आ जाएगा cosec 2x आ जाएगा। देखिए यही प्रूफ करना है क्या, कुछ मिस्टेक हो गई बच्चों, कुछ गलती हो गई, चलिए देख लेते हैं कहाँ गलत कर दिया हमने, ठीक है। tan का होता है log x का होता है 1 अपॉन x, और tan का होता है sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही है। पाई बाई 4 का 0 और x/2 का 1/2, और sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos और sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल तो sin इंटू cos मल्टीप्लीकेशन में। हाँ एक चीज गलत कर दी है, यहाँ पर cosec 2x सीधे लिख दिया है, जब यहाँ पर x होता है तब cosec 2x होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पाई बाई 4 प्लस x/2 है, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा 2 टाइम्स इस पूरे ब्रैकेट का 2 टाइम्स पाई बाई 4 प्लस x/2, ठीक है बच्चों। तो अब जरा देखिएगा, हाँ एक और चीज स्टूडेंट, ये 1/2 तो वैसे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ही रहेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा जरा देखिएगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको तो ये बन जाएगा cosec, ये बनेगा पाई बाई 2 और ये बन जाएगा x, और cosec 90 प्लस थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec प्लस होते हैं, और ये कहा जा रहा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये sec x आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, ये आ जाएगा आपका sec x। ये लिखना पता नहीं क्यों इतना जरूरी है कि बच्चे समझते हैं कि HP लिख गया तो मतलब अब सवाल हल हो गया। बच्चों मैं इन क्वेश्चनों को बिगाड़ देता हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं 10F के, जो कि 53 से 60 नंबर तक के हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, y इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ये हमको दिया जा रहा है यहाँ पर। देखिए जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये तो पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो कि 9th 10th में पढ़ा दी जाती है, आप भी जानते हैं ये चीज। और माइनस साइन 2x का फॉर्मूला आप खोलोगे, क्या खोलोगे, 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x होल डिवाइड बाई, इस 1 को हम दोबारा फिर से यही साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख रहे हैं, और इस साइन 2x को लिख रहे हैं 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x। अब आप मैच कर पाओगे कि ये कुछ है साइन x माइनस कॉस x का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, और ये जो है आपका साइन x प्लस कॉस x का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, और ओवरऑल अंडर रूट है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये केवल बचेगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ये बचेगा। अब आप देखिए अगर हम इसमें साइन x से कॉस x से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा साइन x अपॉन कॉस x होल डिवाइड बाय, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों तरफ कॉस x से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको इसलिए सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि ये छोटा हो जाए और जल्दी डिफरेंशिएट हो जाएगा इससे। तो ये बनेगा tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x। देखिए
जब आप इस कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस बनेगा टेन, कॉस अपॉन कॉस बनेगा 1, साइन अपॉन कॉस टेन बनेगा। चलिए मैं यहाँ टेन पहले लिख देता हूँ, और कॉस अपॉन कॉस बनेगा 1। देखिए टेन एक्स तो हमने वैसे लिख दिया, पर 1 को लिख देते हैं टेन पाई बाई 4, और ये टेन एक्स प्लस 1 है तो इस 1 को पहले लिख लेते हैं, और 1 जो है टेन एक्स के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब ये 1 को क्या लिख सकते हो आप, टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4। तो ये बनेगा फॉर्मूला आपका टेन एक्स माइनस पाई बाई 4। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। टेन का आप डिफरेंशियल जानते हो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर आपने लिख दिया, और x माइनस पाई बाई 4 का दोबारा कर दीजिए तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एक चीज और बच्चों, यहाँ पर इसने माइनस ले रखा हुआ है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप माइनस भी ला सकते हो प्लस भी ला सकते हो। कैसे, जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, मैं चाहता तो इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकता था। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ए स्क्वायर, ए इसको माना हुआ हमने और बी इसको माना हुआ है, अगर तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब cos x माइनस साइन एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो cos x माइनस साइन एक्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है प्रूफिंग में, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लाने के लिए cos x माइनस साइन एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी cos x माइनस साइन एक्स कर देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स। देखिए कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँ। अब cos अपॉन cos से डिवाइड करोगे तो 1 पहले आ जाएगा और tan x पीछे चला जाएगा, ठीक है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और ये बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का, पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आप जब आप करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर जब पाई बाई 4 का डिफरेंशियल पाई बाई 4 माइनस एक्स करोगे तो माइनस 0 माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जब इधर पे इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। देखिए इन्हें पूरा जो है क्वेश्चन जो है दोबारा लगवा दिया हमसे, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, माइनस साइन की वजह से हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा लगाना पड़ गया। एक बार देख ले रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था शुरू में ही कि पाई बाई 4 माइनस एक्स आ रहा है, एक्स माइनस पाई बाई 4 नहीं, तो ऐसा हमें यहाँ बना के चलना चाहिए था। चलिए खैर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहते हैं इस पार्ट में। 53 हो गया, 54 सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू दे रहा है log अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x। एक तो इसके क्वेश्चनों को देख देख कर आप लोगों को भी इसको RS अग्रवाल जो इसका राइटर है या जिसके नाम पर ये पब्लिश हुई है उसको अच्छी अच्छी बातें कहने का मन करता होगा। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही बड़ी बात है। 54 आधे से ज्यादा बच्चे तो लगाते ही नहीं है RS, क्योंकि एनसीईआरटी उनका पाठ्यक्रम चलता है तो एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता भी है। हम ये नहीं कह रहे कि इससे नहीं आता, अगर आप इसको सीखोगे तो जो बच्चे आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं उनको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए RS लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर
2x होल पावर 1/2। ये 1/2 आगे जाएगा क्योंकि ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी पावर लॉग के आगे बचने नहीं पाती। लॉग जो है सारी पावरों को क्या करता है, कहता है हटो तुम पावर से नीचे आ जाओ मेरे साथ में। चलिए dy/dx हम करते हैं। 1/2 तो कॉफिशिएंट है, dy/dx ऑफ log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x। देखिए जगह बचा के चलते हैं, पहले से काफी बड़ा होगा लगता है ये भी। ये log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, क्योंकि जब हम इसे p अपॉन q को 1 में लिखेंगे तो ये q अपॉन p बन जाएगा। तो ये 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट सेकंड रूल लगाओगे। ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो होता क्या है सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट और फिर माइनस फर्स्ट एंड d/dx ऑफ सेकंड, और ये आ जाएगा डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर। नाउ आप देखिए ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा इस ब्रैकेट से, क्योंकि दोनों सेम है। ये तो हमेशा ही होगा लॉग में, जब भी लॉग में p अपॉन q में वैल्यू आएगी तो ये इसकी पावर कैंसिल होगी ही होगी। अब आप देखिए इसको तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको अभी वैसे लिख देते हैं। देखिएगा 1 माइनस ई की पावर 2x हमने वैसे लिख दिया, 1 का डिफरेंशियल 0 और cos x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x का हो जाएगा 2 cos x, cos स्क्वायर x का हो जाएगा 2 cos x, और cos x का दोबारा करोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन x, साफ साफ लिख दें। अब देखिए जरा ये माइनस वैसे ही आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x हमने वैसे लिख दिया, 1 का डिफरेंशियल 0 e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, और ये डिवाइड में हमने वैसे लिख दिया। अच्छा बताओ बच्चों, सच्ची आपके मन में आता है कि नहीं आता? RS अग्रवाल को अच्छी अच्छी बातें कहने का मन करता है कि नहीं करता आपको? कितने सारे क्वेश्चन और किस तरीके के अलग अलग तरीके के बना के क्वेश्चन रख दिए गए हैं। मतलब कहने का जो मन में आया है उसने लिख दिया। ये क्या बन जाएगा sin 2x, ये बन जाएगा आपका sin 2x, और ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस एंड 2 टाइम्स e की पावर 2x एंड 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड होल डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर 2x। देखिए जब आप इन दोनों से इनका डिवाइड करोगे अलग अलग तो ये कुछ बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ क्या बन रहा है, ये dy/dx इज इक्वल टू 1/2। तो हम देख लेते हैं पहले क्या प्रूफ करना है। शायद 1/2 दोनों से गायब है, ठीक है स्टूडेंट है। इन्होंने इस 2 sin x इंटू कॉस एक्स को ऐसे लिख दिया है, तो हम जब इसका डिवाइड करेंगे इन तीनों का पहले टर्म में जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखिएगा जरा, बचेगा ये बचेगा और sin x cos x बचेगा, sin x इंटू cos x होल डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x बचेगा। बिल्कुल यही बचेगा। और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x बचेगा। ये आपको प्रूफ करना है। और एक और चीज यहाँ पे ये माइनस था तो हम माइनस लगाना थोड़ा भूल गए, ये माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था। अब आप टर्म को आगे पीछे कर लीजिए, वो आपकी हेडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, 55 में चलते हैं। अभी भी 11 क्वेश्चन बाकी हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के, बहुत
बोथ होते हैं। 55 में y इक्वल टू एक्स की पावर cos x प्लस साइन x की पावर tan x, ये दे रहा है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फिर से a और b मान ले रहे हैं। a इक्वल टू एक्स की पावर cos x और b इक्वल टू साइन x की पावर tan x। क्यों मान लिया हमने a और b? मैं इसका कारण पहले बता चुका हूँ। हमने a और b इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पर दो एक्सपोनेंट टर्म आ रहे हैं जो कि एडिशन में लिखे हैं। हम इनको डायरेक्ट लॉग से लेकर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो चलिए, जब हमने a और b माना है तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू a प्लस b। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू da बाई डी एक्स प्लस db बाई डी एक्स, ये आ जाएगा जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इसी इक्वेशन 1 मान लो। मैं इंक भर लेता हूँ, मार्कर में खत्म हो गई है। 1 घंटा लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमने जो माना था a माना था, हमने कंसीडर किया हुआ x की पावर cos x है। हम अगर log ले लेंगे तो log a इज इक्वल टू cos x आगे आ जाएगा पावर का, और log x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। d बाई डी एक्स जब अप्लाई करेंगे तो cos x इंटू लॉग एक्स, ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होगा। ये 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स बन जाएगा, लॉग ए का डिफरेंशियल। और इधर फर्स्ट सेकंड जब लगाएंगे तो cos x वैसे ही log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, और log x वैसे ही cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। चलिए a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, जो कि माना था a इक्वल टू एक्स की पावर cos x, ये वैसे ही लिख दिया हमने। ये बन जाएगा cos x अपॉन एक्स प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा था, log x sin x, ये आया हमारा dA बाई डी एक्स। अब देखिए dB बाई डी एक्स क्या आया, dB बाई डी एक्स। पहले हमने b ले लेते हैं जो हमने माना था। b हमने क्या माना था, b इक्वल टू हमने माना है साइन x की पावर tan x। तो हम यहाँ पर log लेते हैं तो tan x मल्टीप्लाई में आ जाएगा जैसे ही log लेंगे, तो ये log ऑफ साइन x बन जाएगा। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, d बाई डी एक्स लगाइए दोनों तरफ, d बाई डी एक्स ऑफ tan x log ऑफ साइन x। ठीक है, और log b का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b db बाई डी एक्स, और tan x इंटू लॉग साइन x का tan x एक बार आप वैसे ही लिख दीजिए, और log sin x का जब आप करोगे तो 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x, और प्लस log sin x एक बार वैसे लिख दीजिए, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशियल। ये b जो है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, ये तो बन जाएगा कॉट, सॉरी कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट, और कॉट और tan की वैल्यू होती है 1। ये तो काफी छोटा हो गया, जितना हमने सोचा था उससे भी छोटा हो गया ये। चलिए b की वैल्यू क्या मानी थी हमने, dB बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x की पावर tan x और 1 प्लस लॉग साइन x इंटू सेक स्क्वायर x, ये बना dB बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये है x की पावर cos x, x की पावर cos x, और क्या है cos x अपॉन x एंड माइनस log x इंटू साइन x, ये है dA बाई डी एक्स की वैल्यू। और dB बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर tan x और मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस
log ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आप मैच कर सकते हो, यही शायद प्रूफ करना है 55 में। एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। चलिए 56 कॉल करते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये उन बच्चों को भी मिल सके जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों। तो देखिए, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कहिए, या फिर आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एंड कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। अब बताइए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आप क्या कहते हैं? आर एस के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के मन में आती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं a इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एंड b इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। मतलब उसने कुछ भी बना के दे दिया, साइन की पावर कॉस, कॉस की पावर साइन। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, हमारा काम है सॉल्व करना। तो ये y इक्वल टू a प्लस बी बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब आपने जो माना था a की वैल्यू, a इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, आप इसको लॉग ले लीजिए। तो आपका जो कॉस एक्स है, इसके साइन के कहे में है, पावर में है, वो लॉग के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना आप, तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ। तो डी बाई डी एक्स जब आप लगा दोगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लॉग ए का तो 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक बार वैसे ही आएगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार साइन डिवाइड में आएगा, कॉस मल्टीप्लाई में आएगा, तो कॉट बन जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये बार बार वही करना पड़ता है बच्चों, तो याद कर लो कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉट एक्स होता है। अब log sin x वैसे ही आ जाएगा, log sin x वैसे ही आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये a उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और a हमने क्या कंसीडर किया था, मतलब माना था sin x की पावर cos x, तो sin x की पावर cos x हमने वैसे ही लिख दिया, और ये cos x इंटू cot x और माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए डी बी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो b हमने क्या कंसीडर किया है, b इक्वल टू कॉस साइन एक्स कंसीडर किया है, b इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स कंसीडर किया है, माना है हमने। तो हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, जिससे ये पावर क्या हो जाए, पावर आगे आ जाए, तो साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स बन जाएगा। अब डिफरेंशियल ऑफ लॉग बी का क्या होगा, 1 अपॉन बी डी बी बाई डी एक्स, और इधर हमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना होगा, इधर हमें फर्स्ट सेकंड आना होगा, तो साइन एक्स का तो वैसे ही आ जाएगा। अभी मैंने बताया लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस टेन बन जाएगा, ये माइनस टेन एक्स बन जाएगा। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर किसी को समस्या है तो कमेंट करें। और log cos x हमने वैसे पुट कर दिया, sin x का डिफरेंशियल cos x आ जाएगा। ये b उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये b मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अब b की वैल्यू क्या मानी हुई है हमने, cos x की पावर sin x, तो cos x की पावर sin x हमने वैसे ही लिख दिया b, और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं वैसे ही, sin x माइनस का इंटू tan x प्लस cos x एंड log ऑफ cos x। देखिए ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालनी है, तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़ा बहुत लिखना बहुत जरूरी है,
कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ से ला रहे हैं, ये एग्जामिनर को पता चलना बहुत जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स एंड प्लस इसकी ये वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स की पावर साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। चलिए मैच करते हैं, आ रहा है आंसर या नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। यही आंसर है आपका। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दे रहा है, देखिए y इक्वल टू टेन एक्स की पावर कॉट एक्स एंड कॉट एक्स की पावर टेन एक्स। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया है इसने, देख कर ही मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। देखिए क्या बनाया है, मान लेते हैं इसको a इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर कॉट एक्स एंड b इज इक्वल टू कॉट एक्स की पावर टेन एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस बी। और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब आपने जो माना है उसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। टेन एक्स की पावर कॉट एक्स, इससे पहले आप लॉग ले लीजिए डिफरेंशिएट करने के पहले, ताकि ये आपका थोड़ा सा इजी हो जाए डिफरेंशिएट करना। तो कॉट एक्स इंटू लॉग टेन एक्स बन जाएगा ये। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा। कॉट एक्स एक बार वैसे लिख दीजिए और लॉग टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और लॉग टेन एक्स आप एक बार वैसे ही पुट कर दीजिए, लॉग टेन एक्स एक बार वैसे ही पुट कर दीजिए। और कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉट का क्या होता है बच्चों, याद आ रहा है, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉसेक स्क्वायर। ऐसा नहीं है बच्चों, हमको याद नहीं है, सब याद है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए डी ए बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ए की वैल्यू क्या है टेन एक्स की पावर कॉट एक्स, और ये कॉट और टेन ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर अपॉन टेन ये बनता है 2 टाइम्स कॉसेक 2x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 टाइम्स कॉसेक 2x और कॉट x लिख दे रहा हूँ वैसे ही, और ये प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर x आगे लिख दिया और लॉग टेन एक्स पीछे लिख दिया। अब देखिए कॉसेक एक्स इसमें कॉमन आ रहा है, हालांकि करना तो ना चाहिए हमको आगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा बनाने के लिए करना पड़ेगा। कॉसेक नहीं कर सकते बच्चे, यहाँ पे कॉसेक 2x है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, तो हम यहीं पर लीव कर रहे हैं और हम dv बाई dx अब कैलकुलेट करेंगे। यही आपका dA बाई dx है। अब dv बाई dx कैलकुलेट करेंगे, क्या आता है dv बाई dx, क्योंकि b तो हमारा cot x की पावर 10x है, तो दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log b इक्वल टू क्या आ जाएगा 10x इंटू लॉग ऑफ cot x, ये आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन b एंड db बाई dx, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो tan x वैसे ही आ जाएगा, log cot x का डिफरेंशियल क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cot x, और cot x का दोबारा करोगे तो आएगा माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस लॉग कॉट एक्स, एक बार वैसे लिख दो, और tan एक्स का डिफरेंशियल क्या कर दोगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो db बाई dx हमने वैसे लिख दिया, ये b उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, cot x की पावर tan x। और देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cosec को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखोगे आप, cot को cos अपॉन साइन लिखोगे, साइन साइन कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा साइन इंटू कॉस, और फिर इसको वापस क्या लिख सकते हो 2 cosec 2x। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और cot को cos x अपॉन साइन x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो साइन x cos x बनेगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 cosec 2x बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cosec 2x, और tan x वैसे लिख दिया, और इसको भी वैसे लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स। बहुत छोटा लिख रहे हैं, आप जूम करके देखिएगा अपना बढ़िया, या फिर जो मैं बोल रहा हूं उससे मैच कीजिए। चलिए dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या, इक्वेशन 1 से dy बाई dx की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर हम dA बाई dx की वैल्यू रख दें और dB बाई dx की वैल्यू पुट कर दें, और बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। 58 है, 57, cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर दोनों में आ रहा है, cosec 2x आ रहा है, cosec स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हम जो है तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना है उसमें cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, cosec 2x वाले टर्म्स नहीं आ रहे, तो हम इनको वैसे ही लिख देते हैं और चेंज नहीं करते। तो जब चेंज नहीं करेंगे तो आप जरा देखिए क्या बनता है, ये जब चेंज नहीं करते हैं तो जब हम ये तो हमारा a की वैल्यू हो गई था, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये वाला टर्म वैसे ही आ जाएगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा वैसे ही लिख दे रहे हैं बिना चेंज किए। तो देखिए ये tan उधर जाएगा तो cot स्क्वायर बन जाएगा, cot स्क्वायर एक्स, tan ऊपर जाएगा, और ये sec स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना है, इसको cosec 2x नहीं लिखना है, इसको आपको tan स्क्वायर लिख देना है, और cosec स्क्वायर वैसे लिखे रहने देना है, इस टर्म को भी आपको नहीं बदलना है। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये हो गई a की और ये हो गई b की वैल्यू। अब आप जरा देखिएगा, क्या देखेंगे आप, कौन सा नंबर है 57, tan x की पावर cot x cosec स्क्वायर x 1 माइनस log tan x, 1 माइनस log tan x। जब आप cosec स्क्वायर 1 माइनस log tan x आ रहा है, अच्छा 1 माइनस log tan x, इस cot स्क्वायर x की जगह पर दोस्तों हम बना ले रहे हैं, cot स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, cosec स्क्वायर माइनस 1, cosec स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है। 2 मिनट रुकिए जरा। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे cot स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा आपका, cot को लिख सकते हो cos अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर कैंसिल होकर 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप cosec स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप cosec स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से आप इस tan को साइन अपॉन साइन कॉस में तोड़ो और cosec को 1 अपॉन साइन में लिखो, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या आपका, केवल 1/cos², और 1/cos² को आप sec²x लिख सकते हो। अब देखिए इधर पे ये cos² कॉमन आ जाएगा, cos² कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा tan x की पावर cot x, cos² हमने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 माइनस log ऑफ tan x। और इधर पे क्या बच रहा है देखिएगा जरा, इधर पे बचेगा, ये थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से, देखिए dB/dx बचेगा आपका cot x की पावर tan x, और sec² जब आप कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा log cot x -1, log cot x -1। अब आप ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन 1 वैल्यू ऑफ dA/dx एंड dB/dx। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए तो dy/dx मिलेगा, dy/dx क्या मिलेगा, tan x की पावर cot x cosec² मल्टीप्लीकेशन में, देखिए tan x पावर cot x cosec² मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस log tan x, 1 माइनस log tan x एंड प्लस cot x की पावर tan x, cot x की पावर tan x और sec² मल्टीप्लीकेशन में, sec² मल्टीप्लीकेशन में, और log cot x -1 मल्टीप्लीकेशन में। यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 57 में। जैसा कि ये लेक्चर वैसे ही काफी लंबा हो गया है, तो हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को अगले पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like press the like button।